to this session on patents organized by Patent Facilitation Unit at IGNOU. A brief about the unit. The Patent Facilitation Unit at IGNOU aims at guiding and supporting the IGNOU students in IPR and patent filing process. It is organizing talks and virtual sessions for innovator students of IGNOU to create awareness about the importance of patents in the field of innovation, startup, and other related aspects. Today, we are conducting the first talk in this series. And the expert speaker for today's talk is Dr. Moumita Das, Deputy Director, National Center for Innovation in Distance Education, IGNOU. I welcome you, Dr. Das, to today's session. I'll give a brief about the speaker before starting the talk. Dr. Moumita Das has been nominated as the convener of the IIC at IGNOU, which is an initiative of the Ministry of Education as Innovation Cell to shape the innovation ecosystem in the higher education institutions. She is also one of the founder members of Innovation Club at IGNOU, and she is an innovation ambassador certified by the MIC. And she is actively involved in nurturing an environment of innovation in this university and has conducted several events, seminars, and training programs on creativity, innovation for teachers, staff, and students of IGNOU. She has also authored 7 books and many articles. So I welcome you once again, Dr. Moumita. She will be speaking on patents, basics of patent. As we all know, innovation, entrepreneurship, and intellectual property rights are codependent entities, which are the cornerstone of any economy in today's context. And intellectual property rights are in the form of patents, copyrights, or trademarks. Whenever an innovation or invention is done, it presents a new solution to any problem. And it has to be protected through patents. Thus, patents protect the interest of innovators whose technologies are groundbreaking and commercially successful, and help to ensure that the innovator can control the commercial use of their innovation. The owners get exclusive rights to prevent others from making, using, selling, offering for sale, or importing a process or products in respect of which the patent has been granted. So we will be knowing more about patents in today's talk. Before I hand over to the expert speaker, I would request Director NCID, Dr. O.P. Sharma, to please give a brief about the sessions that we are going to conduct and also about today's sessions. Dr. Sharma, please. Thank you, Dr. Sujata. Good morning to all of you. जैसा डॉक्टर सुजाता ने बताया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एक पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट हमने मॉर्निंग सर कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एक पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट क्रिएट किया है और इसका मकसद ये था कि हम आप जैसे बहुत सारे अपने इग्नू के स्टूडेंट्स के साथ में बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं उनके बहुत इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, बहुत स्टार्टअप्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन देखा है कि उन सबको ये आइडिया नहीं है कि किस स्टेज पे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट किया भी जाए कि नहीं किया जाए। आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है और कि आपको आपने कोई इनोवेशन किया है तो क्या उसको कहीं दूसरों से बचाने की जरूरत है ताकि उसका मिसयूज ना हो? कहीं ऐसा हो कि आपके आइडिया आने से, आपके करने से, कुछ करने से पहले ही कोई उसको कुछ और करने लगे। तो ये बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस तरीके का भी एक इनिशिएटिव लें ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके का इनोवेटिव काम कर रहे हैं या नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं तो उनको हम जो
आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में एक एक करके जानकारी दें। क्योंकि हम जानते हैं कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बीसीए में है, एमसीए में है, बीएससी, एमए एटसेट्रा, पीएचडी के भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत कम को पता है कि मेरा अगर आइडिया आ रहा है तो उस आइडिया को किस स्टेज पे मुझे प्रोटेक्ट करना है, करना भी है तो कैसे करना है, क्या क्या उसमें कठिनाइयां आएंगी, किस तरीके से किसको अप्रोच करना है, बहुत सारे एक लंबा प्रोसेस होता है, आप कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक तो पहला इनिशिएटिव लिया कि यूनिवर्सिटी में एक पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट क्रिएट किया, और इस यूनिट का जो पर्पज है, टू फोल्ड पर्पज है मैं कहूँगा। एक तो सबसे पहले यह है कि आप सबके बीच में ये सारा पेटेंट, आईपीआर और जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में एक बेसिक जानकारी देना, जैसा मैं अभी कह रहा था। और दूसरा यह है कि अगर आप में से कोई आगे आता है और मुझे आप कहते हैं कि हमें पेटेंट फाइल करना है या अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि अभी तक हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, पर अभी तक उन्होंने अपने उस इनोवेशन को या आइडिया को कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उसका कारण क्या है कि या तो उनको पता नहीं है कि उनका जो भी आइडिया आ रहा है या जो काम कर रहे हैं उसको कहीं इस तरीके से बचाने की भी जरूरत है, क्योंकि आज जानते हैं आज के समय में आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, उसको सुनता है, उससे पहले कोई दूसरा उस पर इनिशिएटिव ले लेता है और पेटेंट फाइल कर देता है और आप सोचते रह जाते हैं। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि अगर वो करना भी चाह रहे हैं तो वो उनके सामने प्रॉब्लम आती है कि हम आगे कैसे बढ़ें, कहाँ अप्लाई करना है, किस तरीके की एप्लीकेशंस होंगी, किस तरीके के और प्रोसेसेस होंगे, ये सारी चीजें। तो हमने ये जो सीरीज शुरू की है, दिस विल बी काइंड ऑफ रेगुलर सीरीज अंडर दिस पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट, जिसमें हम इनवाइट करेंगे आप लोगों को भी। और मैं कहूँगा, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पेटेंट फाइल कर रखा है, तो जरूर वो एक प्रोसेस से गए हैं, दे कैन ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन इन द डिस्कशन सेक्शन। और दूसरा, जो स्टूडेंट अपना चाहते हैं वो भी अपना एक आइडियाज, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव हमारा है, इसका मेन मकसद यही है कि आपको अवेयर करना और आपको पेटेंट फाइल करने के लिए जिस तरीके से भी संभव होगा उसको फैसिलिटेट करना। सो कम विद अस, शेयर योर आइडियाज विद अस, और उसको हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे वो सब करेंगे। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ पेटेंट से कर रहे हैं। दैट्स वाई डॉक्टर मौमिता आपको यही बताएंगी कि बेसिक्स क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं उनका क्या मतलब है, और हम कहाँ कहाँ पे क्या कर सकते हैं। और ये आज का सेशन है, शुरुआत है। वी विल कीप इट रेगुलर, एटलीस्ट मंथली तो हम रखेंगे, जरूरत पड़ी तो इन बिटवीन ऑल्सो वी विल डू समथिंग। सो विद दैट आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप आज का सेशन और आने वाले all the session will be very useful to all of you. So thank you very much, and take advantage of this session being organized by the NCID at IGNOU. Thank you very much. Thank you, Dr. Sharma. Thank you so much. So now I invite our expert speaker to please give her talk. So thank you, Dr. Momita. Thank you, Dr. Sujata. Yeah. I hope I'm audible. Good morning, Dr. Sharma. Yes. And good morning to all who are present here today. My talk is going to be of about 45 minutes duration. I would like to keep it bilingual. यहाँ पे हिंदी में कहने से किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है? I hope everybody understands Hindi here. Yes, ma'am. Okay, I'll keep it bilingual anyway. Okay. Okay, thank you. Now we have participants here from different levels. कुछ लोग बिल्कुल नए हैं,
इस फील्ड में जो आना, मतलब दे वांट टू फोरे इनटू इट, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे हैं जिन्होंने वो हासिल कर लिया है। तो इस डाइवर्स ग्रुप को देखते हुए मैंने इस टॉक को एक एवरेज लेवल पे रखा है ताकि जो नए हैं उनको समझ में आए। तो इसीलिए इसका टाइटल भी बेसिक्स ऑफ पेटेंट ही है। ऑल्दो पेटेंट थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, मैं थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर शर्मा ने रिक्वेस्ट किया था, थोड़ा आईपीआर के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स के बारे में एक जनरल ओवरव्यू दूंगी इस टॉक में। और बट बिफोर दैट मैं थोड़ा, चूंकि ये 40-45 मिनट्स का टॉक होगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी हो सकता है, तो थोड़ा इंटरैक्टिविटी भी मैं चाह रही थी आप लोगों से। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर टॉकिंग टू मी। तो सबसे पहले आप में से कोई बता पाएगा आज के टॉक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या, क्यों आए हैं यहाँ, क्या जानने आए हैं? एनीबडी? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक ऑल्सो। हाँ कुणाल बताइए, जस्ट 30 सेकेंड। गुड मॉर्निंग मैम। कुछ प्रॉब्लम है वॉइस में? मैम am I audible मैम? बताइए। हाँ यू आर। Ma'am, whatever session you are to present to us ma'am will be the torch bearer and will guide us through the process. मैम ये फैसिलिटी मुझे नहीं मिल पाई थी मैम, आई वाज नॉट दैट फॉर्चुनेट एज अदर्स आर। अगर मिलती मैम तो मैं शायद अपनी मंजिल को और पहले हासिल कर लेता। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। आई एम गोइंग टू लर्न थैंक यू। Anybody else? I can see कुसुम, इशिता, आप लोगों ने पहले भी सेशंस ज्वाइन किया है। बताइए क्या आपको क्या लगता है इस सेशन से क्या सीखना चाहते हैं? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, कुसुम प्लीज फर्स्ट, देन इशिता। Good morning, ma'am, and good morning, sir, and सुजाता मैम, गुड मॉर्निंग। मैम देखिए, जैसा कि मैं इस फील्ड में नई हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, तो मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया और एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मैं चाहूँगी मुझे सीखने को मिले, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि ये सब चीज़ मुझे आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। वेरी थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू। इशिता? गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली हम लोग इनोवेशन करते हैं, लेकिन उस इनोवेटिव आइडियाज़ को हम दूसरों से शेयर कर देते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि हमें अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर हम ये वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें ये पता चले कि हमें आइडिया को प्रोटेक्ट करके उसका पेटेंट कैसे अपने नाम पर फाइल करना है कि दिस इज माई क्रिएशन, दिस इज माई इनोवेशन। तो दैट फाइलिंग ऑफ द प्रोसेस I will get to know from this seminar or workshop. Thank you. थैंक यू। और कोई कहना चाहता है कुछ? Yes ma'am, good morning Yes, ma'am. good morning. Yeah, so मैम मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है बिकॉज एक्चुअली मैं भी मतलब कि पहली वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, सो मुझे भी नहीं पता कि इस फील्ड में मतलब कि किस तरीके से सेशन हो रहे हैं, टाइमिंग क्या रहती है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑर्गेनाइज सेक्टर, सो एनजीओ सेक्टर में। यस मैम, सो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने अपने लिए बिकॉज अभी सेशन होने वाला है बच्चों के साथ में। तो टाइमिंग क्या रहती है मैम सेशन अगर हम ज्वाइन करते हैं ये वाला? तो इसकी टाइमिंग आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम मेल में बता दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि एक पीरियड, अब आज तो पहला दिन है या पहला सेशन है, इस तरह के और भी ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग, तो आपके मेल में पहुंच जाएगा। सो मैम ये हो सकता है कि टाइमिंग जो है आफ्टरनून की रखी जाए बिकॉज 2 बजे से 3 बजे या 4 से 5 की टाइमिंग, क्योंकि बिकॉज वर्किंग होते हैं बहुत से लोग, तो वो कई बार इग्नू के मेल्स भी आते हैं बट वो काम का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और फिर माइंड से स्किप भी हो जाता है मैम। ठीक है, विल टेक नोट ऑफ, या श्योर, विल टेक नोट ऑफ योर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ अपना इनपुट दें तो आगे बढ़ाएंगे टॉप को फिर। हाँ, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द टॉपिक ओनली, सो लेट अस रिज्यूम। सो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरी ये है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है स्टार्टअप्स में? कितने ने स्टार्टअप बना लिया है या कितने लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके स्टार्टअप शुरू करेंगे? यस कुणाल। I'm on the way ma'am. Very soon I will have it. ओके, वंडरफुल। ये ललिता जी, आप कुछ कह रहे हैं?
यस मैम, स्टार्टअप के बारे में तो मैम बनाया नहीं है और अभी सोचा भी नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे जानकारी लेनी थी कि स्टार्टअप मतलब कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं। Okay, wonderful. ठीक है. So you are interested basically in the topic of IPR and startups. So ठीक है, let us start now. तो मैं अपना slide present करना चाह रही हूँ अभी. Let us see. So what is it that I should share? Entire screen? Wait. Yeah. Is it visible? Not yet. Yeah, now it is visible. Okay. यस मैम। Okay, wonderful. So let me go to the first slide. Okay. So this is the topic. आज का टॉपिक ये है. इसको ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बनाया मैंने, बहुत सिंपल यूज किया है वर्ड, बेसिक्स ऑफ पेटेंट. और या आई वुड लाइक टू से कि आप लोग जो हैं इसको आगे जो आज जानेंगे उसके आगे जाके थोड़ा पढ़ाई करिएगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में. तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट गो एंड डिग अप द इंफॉर्मेशन. तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट टू नो मोर इन योर ओन लेजर टाइम. ठीक है. ओके. तो जैसे आपको पता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम है. स्लाइड में विजिबल नहीं है। Momita, the slides are not there. Oh, okay. Wait. Let me. Is it visible No, now? not yet. No. नो मैम, नो। Okay. Let me see if I can share. This is an issue here. Wait. A window. Is it visible now? यस मैम, Yeah. विजिबल। अच्छा, किसी ने अपना माइक ऑन रखा या कुछ है, आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज. ओके, थैंक यू. सो आई वाज सेइंग कि आप लोगों को तो पता ही है स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एनवायरनमेंट बनाया है स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए, जिसकी वजह से ये हम लोग आज डिस्कस भी कर रहे हैं. आप लोगों ने काम भी शुरू करा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अपने हिसाब से दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क आल्सो इन दिस फील्ड. सो बट देन यू हैव टू बी यू हैव टू बी एम्पावर्ड विद द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स. जैसे अभी थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन में ये पता चला था आप लोगों से भी डिस्कस करके कि बहुत लोगों को नॉलेज लेने की ज़रूरत फील हो रही है. So definitely, so this is why we are here today with you. So आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आपका जो लर्निंग आउटकम होगा, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेशन के बाद आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है. टर्म्स आप ध्यान से सुन लीजिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन से हैं. वेट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर स्टार्टअप्स का इंपॉर्टेंस क्या है, पेटेंट क्या है, वेरियस कॉन्सेप्ट्स उसके साथ एसोसिएटेड है वो क्या है, एंड पेटेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका प्रोसेस आपको थोड़ा सा पता चलेगा यहाँ से. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रॉपर्टी के बारे में किसको पता है, प्रॉपर्टी क्या होता है. कैन एनीबॉडी से क्विकली. Something that we own, ma'am. Anything that we own. और संपत्ति. संपत्ति. और उसका और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है. मैम किसी भी चीज पर हमारा लीगल राइट होना. एग्जैक्टली. सो आई गॉट व्हाट वाज लुकिंग फॉर. एक तो आप उसको ओन करते हैं कोई भी चीज. अच्छा, एक थर्ड चीज भी है, बताइए क्या हो सकता है वो थर्ड चीज. द फर्स्ट थिंग इज एनीथिंग दैट यू ओन. सेकंड थिंग इज इट हैज टू बी लीगल. एंड द थर्ड थिंग इज वैल्यूएबल. सॉरी, इट शुड बी वैल्यूएबल. वैल्यूएबल. नो. ओके, वैल्यूएबल तो होता ही है.
important है, but that's not what I'm looking for. Somebody quick. It has to be tangible. मतलब आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, you know, ये प्रॉपर्टी का इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. So it has to be a thing that you own, and it has to be legally owned, and the third one is it has to be tangible. Now intellectual property में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल वर्ड यूज हुआ है ना. अब इंटेलेक्चुअल जो होता है, इंटेलेक्चुअल इज समथिंग रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट, योर माइंड, योर ब्रेन, राइट. अब माइंड में क्या चल रहा है, वो टैंजिबल है या इंटैंजिबल है? एनीबडी? टैंजिबल का इंटैंजिबल मतलब आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, यू नो, सेंसेस से आप उसको मेजर नहीं कर सकते. सो दैट इज इंटैंजिबल. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक इंटैंजिबल चीज है, बट यू ओन इट. हुएवर क्रिएट्स समथिंग ओन्स दैट, एंड इट हैज टू बी लीगल एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. ठीक है. So ये है इसका definition. An intangible property, which is the creation of the human mind, it has to be new. पुराना जो है वो उसको माना नहीं जाएगा, इसके परव्यू में नहीं आता है. It has to be something new, and उसमें एक inventiveness का element होना चाहिए. Inventiveness क्या है, इस concept को थोड़ा और आगे मैं बताने जाऊंगी. Unique होना चाहिए, you know, नया, novel. Okay. अब intellectual property के जो एरियाज हैं, डोमेन है, वो क्या है, किस एरिया में आप कहेंगे कि भाई हमारा आइडिया आया है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है. तो एक डोमेन है इन्वेंशंस, कुछ नया खोज किया आपने. दूसरा हो सकता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस, कुछ लिख लिया, कुछ कविता लिखी, या यू नो सच थिंग्स. उसके बाद थर्ड कैटेगरी है डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कुछ खास फीचर्स देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, यू नो, जैसे ब्रांड नेम, साउंड, स्मेल, कलर, इस तरह से. देन द नेक्स्ट वन इज डिजाइन, देन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स. ठीक है. दीज आर द डोमेन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ये डोमेन एरियाज. या Excuse me, ma'am, PPT is not visible. Oh, this is an issue. What's wrong here? Wait. Is it visible now? Not yet, Momita. It disappears from time to time. Oh. Very interesting. Okay, let me just give me a moment. Check. Do you need any help with that? Shall we present on our side? I am not very sure. I'm playing it from here, but maybe it is automated or something, because of which. Let me check. Wait. Just give me a moment. There is some noise coming from. Let me remove this thing and start on the mouse click and see if it works, because should work now. Let me check. Okay, let me play again. Let me just share it. Okay, just a second. Let me play it on screen first. Okay.
Okay, let me just to go to the next tab. Is it visible? Anybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's Okay, visible. I hope it remains visible. One? Yeah, yes, Sujata. Is it visible, anybody? Ma'am, No, it again disappeared. It Disappeared, ma'am. again disappeared. Okay. Okay, so what I'll do is I will just give a talk and you can note them down and later I can share the PPT with you. Is it okay? I'll just interact with you. Okay, don't worry. Don't worry about the PPT. Okay. Okay, ma'am. Please do share it on the mail. Yeah, I will. Okay. Let's try again. Is the PPT visible now? No, ma'am. It was visible once and then it got disappeared. Okay, When wait. your video was on, Okay. then it disappeared. Okay, wait. Just a second. Okay, let me this one. Okay, how about now? Now visible. It's visible? It again stopped. It stopped. डॉक्टर Okay. ममिता, इसको अभी आप हाँ, I think सुजाता को शेयर करिए. सुजाता, नहीं वो डॉक्टर let शर्मा Sujata present if it is नो possible. नो इट वोंट बी बिकॉज उसमें ऑटोमेटेड है सो देर इज अ यू हैव टू रीमेक द होल स्लाइड अगेन दैट इज द इशू देर इज एन ऑटोमेट आई मीन दैट इज ऑटोमेटेड so let me send it to Dr. Sujata.
So okay, I have requested Dr. Sujata to see if anything can be done with that. So I was talking about the different domains of intellectual property. So does anybody remember कौन-कौन से domain बताए थे मैंने अभी? What are the different areas of intellectual property? Yes, and Ishita? Poetry, startup, innovation. No. Areas of intellectual property. Intellectual property क्या है वो clear हो गया सबको? Anybody is listening to me or everybody is gone away? I am listening, ma'am. हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है बताएंगे कोई? एनीबडी? जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. तरुण बताइए. मैम intangible asset has to be owned and has to be a property like art हो गया जो copyright हो सकता है इसका. Okay. First, it has to be owned. Second, legally, you should have a legal right over that. And the third one, it should be tangible. Okay, perfect. Mr. Rajesh, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Same, ma'am, same. I was just trying to define the intellectual property that others are defined already. Okay, चलो let's go come back to the domains of intellectual property. क्या है domains? Domain समझते हैं? Do you understand? Yes, ma'am. Domains मतलब areas होते हैं, ठीक है? तो intellectual property को protection करने के लिए for the convenience of protecting वो areas में divide किया गया है so that the laws can be implemented on them, ठीक है? तो domains क्या हैं इसमें? एक है invention, याद रखना है आपको, invention. दूसरा है literary and artistic creation. तीसरा है distinctive features, खास features. Am I clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, good. Then next is designs. Fourth is geographical indications and next is trade secrets. So इसके अलावा भी है बहुत सारे, ठीक है? Because अभी टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ ये चीजें जो है इनमें प्रोटेक्शन दिया जाता है. So can we have the next one please? Next slide. We'll quickly go through. So IP क्यों important है? Intellectual property सोसाइटी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? इट प्रमोट्स इनोवेशन, इन्वेंशन एंड सच साइंटिफिक नॉलेज इन द सोसाइटी. एंड जो क्रिएटर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसको लॉ के द्वारा खास प्रोटेक्शन दिया जाता है. दैट इज व्हाई आईपी इज इम्पोर्टेंट. एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इसमें क्या होता है कि जो आप एज ए ओनर, इफ यू ओन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपको राइट मिला है बिकॉज ऑफ योर आईपी, यू कैन असाइन सम वैल्यू टू योर आईपी. अभी आईपी में क्या हो सकता है आपका? आईपी में आपका इन्वेंशन हो सकता है, आईपी में आपका लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई डिस्टिंक्ट फीचर हो सकता है, डिजाइन हो सकता है. तो वो जो आईपी है आपके पास है, उसके ऊपर आपका जो राइट है, उस राइट को आप एक वैल्यू दे सकते हैं, उस चीज का एक वैल्यू आप एवैल्यूएशन कर सकते हैं. उसके बाद उसको आप बेच सकते हैं, कमर्शियलाइज कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं. यू कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम कॉपीइंग इट, ठीक है? एंड अगर किसी ने वायलेट किया, आपका जो प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया, इन्फ्रिंज कर लिया, तो लॉ जो है उसको पनिश करेगा, पेनलाइज करेगा, ठीक है? ये फायदे होते हैं आईपीआर. तो अभी थोड़ा सा क्विकली जो है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देख लेते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि राइट्स का जो वैल्यू क्या है आईपी का, है ना? सो नेक्स्ट प्लीज. तो अभी हमने एरियाज बताए थे, तो एरियाज या डोमेन्स बताए थे. डोमेन्स के बेसिस पे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं. इनका क्या कैटेगरीज है? एज यू कैन सी, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स हैं, प्लांट वैरायटी राइट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं,
जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन है, सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं, डेटाबेस है। सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट्स तो इंडिया में अभी इतना नहीं है, बट इट माइट कम सून। तो इस तरह के IPRs होते हैं। अब इसमें आपके आज के टॉपिक के हिसाब से पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स, ये 3 चीजें मैं डिस्कस करूंगी ब्रीफली। तो डोमेन क्या हुआ, कोई बता पाएगा? पेटेंट किस डोमेन में व्हाट डोमेन ऑफ IP को प्रोटेक्ट करता है? पेटेंट कौन से डोमेन को? एनीबडी? इन्वेंशंस, इनोवेशन। हाँ, इन्वेंशन या इनोवेशन? इन्वेंशन। अच्छा, इन्वेंशन। ईशिता कह रही है इनोवेशन। आप लोग इस बात को याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। ये पेटेंट जो है इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, इनोवेशन को नहीं। एंड व्हाई नॉट? क्या डिफरेंस है इनोवेशन और इन्वेंशन में, जिसकी वजह से इनोवेशन को प्रोटेक्शन नहीं मिलता पर इन्वेंशन को मिलता है? ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स में का डोमेन क्या है? एनीबडी? Literary work, ma'am. Software work. Any photograph or any other creation, ma'am. Right. Anybody else? Okay. Literary and artistic works, broadcast भी होता है, उसका भी प्रोटेक्शन कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स के तहत आता है। ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स का डोमेन क्या है? ब्रांड्स, राइट, Brand name, ma'am. ब्रांड्स है, सर्विस, जो डिफरेंट डिस्टिंक्टिव मार्क्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव चीजें होती है, फीचर्स किसी का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स। कभी कभी आप लोगों का आप जो कंपनी स्टार्टअप बनाओगे तो उसका एक लोगो होगा, ठीक है, वो भी डिस्टिंक्टिव फीचर होगा उसका, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल सकता है, ठीक है, अंडर ट्रेडमार्क्स और सर्विस मार्क्स। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स। मैम लोगो ब्रांड में तो कोई कॉपीराइट कराता है, कोई ट्रेडमार्क, उसमें क्या डिफरेंस होता है? कॉपीराइट नहीं कराता, वो ट्रेडमार्क ही कराते हैं। लोगो का कॉपीराइट नहीं होता है, ट्रेडमार्क ही होता है या सर्विस मार्क। कॉपीराइट तो लिटरेरी वर्क होता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। सो मैं ये बताना चाह रही थी अभी कि आपका जो स्टार्टअप अगर होगा तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंस रखेंगी, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके आगे जाकर के ये बाकी जो टाइप्स हैं ये भी कहीं कहीं यूजफुल हो सकता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, किसी के डेटाबेस को इनोवेटिव वे में किया है, या कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में कुछ ऐसा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसको वो इनोवेट कर रहा है, तो हो सकता है कि उसमें भी प्रोटेक्शन मिल जाए। ये थोड़ा लिटिल एडवांस्ड, सो बाद में डिस्कस करेंगे इसको, पहले हम बेसिक समझ लें फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु हैव जस्ट जॉइंड, जो न्यू हैं उनके लिए। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि स्टार्टअप के लिए IPR में इंपॉर्टेंट पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट होता है, एंड ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क होता है। दिस क्लियर टू एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम पेटेंट के बारे में जानते हैं, पेटेंट क्या होता है। तो डेफिनेशन जो है पेटेंट का, ये ऐसा बताया गया है, पेटेंट एक्ट में भी है, हमारे 1970 का पेटेंट एक्ट है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये है कि पेटेंट जो है वो है, इट्स अ राइट गिवन टू एन इन्वेंटर। टर्म्स समझ लीजिए क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है। इट इज गिवन टू एन इन्वेंटर फॉर हिज और हर इन्वेंशन by the government. Why? To prevent third parties who do not have his or her consent for making, using, offering to sell, selling and importing an invention or the act of using that process for a limited period of time in exchange for the public disclosure of the invention. और invention को कैसे डिफाइन किया गया है? It has to have an inventive step and capable of industrial application. तो अभी मैं ये जस्ट डिफाइन करके नेक्स्ट आगे बढ़ रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट जब इसके आगे मैं पेटेंट का ये जो डेफिनेशन है आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पेटेंट
इन्वेंशन के लिए एक राइट दिया जाता है, आपके इन्वेंशन के लिए आपको एक राइट दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें है कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट व्हिच इज ग्रांटेड टू द क्रिएटर in the areas of original literary, dramatic, musical and artistic works, cinematograph films and sound recordings. So the owner can authorize others to reproduce the work, मतलब कॉपी करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, जैसे पब्लिशर्स को दिया एंड ऑल सच थिंग्स। इसका ड्यूरेशन है लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, जब तक ऑथर जिंदा है तब तक, एंड 60 years आफ्टर डेथ, उसके डेथ के 1 साल बाद से 60 years तक। रिलेटेड राइट्स एंड जिसमें परफॉर्मर राइट होता है, मान लो किसी ने कोई गाना लिखा तो कोई नेक्स्ट अगला बंदा, दूसरा बंदा जाकर के उसको गा दिया, वो लाइसेंस लेके अगर ही और शी हैज टू ऑब्टेन द लाइसेंस, वो परफॉर्मर को लाइसेंस मिलता है। और ब्रॉडकास्ट आपको पता है आजकल सोशल मीडिया में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पहले रेडियो में होता था, टीवी में होता था, तो वो गाने के लाइसेंस लेते थे, या ड्रामा होता था या कुछ भी लिटरेरी वर्क होता था, उसका लाइसेंस उनको लेना पड़ता था फ्रॉम द ऑथर। द टर्म ऑफ परफॉर्मर्स राइट इज फॉर 20 years। अब ये फर्क है, जो ऑथर होता है उसका लाइफ टाइम एंड 60 years आफ्टर डेथ होता है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन जो परफॉर्मर होता है उसको सिर्फ 20 साल मिलते हैं लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट प्लीज, वी विल टॉक अबाउट ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स नाउ। सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क क्या होता है? It is an exclusive right given to use the trademark or the service mark in relation to the goods or services in respect of which the trademark is registered। आपने जिस चीज के लिए ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया है उसी पे ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। The duration of protection is 10 years and may be renewed from time to time। 10 साल के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा from the date of registration and you can renew it out from time to time। Now here I'd like to say something। ये जो अभी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स के बारे में बताया, तो आपके जो स्टार्टअप में कॉपीराइट भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट बना है जो स्पेसिफिकली बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ऐसी कोई नई चीज़ है, उसमें कुछ लिटरेरी वैल्यू है, वो प्रोटेक्शन किया जा सकता है कॉपीराइट के तहत। और आपका कंपनी का लोगो, स्टार्टअप का लोगो आपने बनाया है या कुछ और चीजें हैं उसमें, तो उसमें ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क का प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लीज। अब स्टार्टअप्स जो है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि स्टार्टअप्स में आईपीआर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये अब थोड़ा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज बनाई है अपना, समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग इन्वेंटिव, आईपीआर में हमेशा इनोवेटिव नहीं देखा जाता, इन्वेंटिव देखा जाता है, क्योंकि पेटेंट में इन्वेंशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगी, अभी इन्वेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगी। अगर आपके पास कोई आईपीआर है, कुछ आपने नया इन्वेंट किया है, कुछ बनाया है, तो उसको लेकर के आप क्या क्या कर सकते हैं, उसको लेके पहले तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि आप जो है आपने कुछ नया लेके आए हैं। आप नॉलेज ऑफ ए सिमिलर आईपी, आपको आपके इन्वेंशन से मिलता जुलता और भी कोई इन्वेंशन है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाता है। उससे ये होता है कि आप उसको यू कैन गेज इट, यू कैन कंपेयर इट एंड देन यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट ऑल्सो। आपको फंडिंग मिल सकती है आपके इन्वेंशन पे। आपने देयर आर फंड एंजल इन्वेस्टर्स एंड सच पीपल जो आपको फंडिंग दे सकते हैं उसको लेकर के। कोलैटरल फॉर लोन्स, आप उसको लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आपके इन्वेंशन को रख के बैंक में। उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको लाइसेंस कर सकते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स है फॉर एग्जांपल, उनका एक सर्विस का वो एक प्रोडक्ट भी है उनका, उसको वो लाइसेंस कर रहे हैं, तो उनके हजारों दे हैव योर आउटलेट्स, राइट। इस तरह से कर सकते हैं आप अपने आईपीआर को। जब मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, मान लीजिए आपने आईपीआर के अपने पेटेंट या किसी चीज के बेसिस पे आपने कंपनी शुरू किया, वो अगर कोई बड़ी कंपनी खरीदना चाहती है तो मर्जर होता है एक प्रोसेस और एक्विजिशन होता है, तो उसमें आपका जो है आईपीआर की वैल्यू देख करके उसको दे कैन बाय इट ऑल्सो, यू कैन सेल इट एट अ गुड प्राइस। एंड लिटिगेशन सपोर्ट,
लिटिगेशन सपोर्ट आपको मिल सकता है आईपीआर अगर प्रोटेक्टेड है तो। ठीक है, ये थोड़ा अभी डिटेल में बोलने का भी टाइम है नहीं इसमें, वी कैन डिस्कस लेटर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, पेटेंट्स की वैल्यू क्या है ये दिखाने के लिए आपको। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये बेसिकली पेटेंट्स हैं, दीज आर द पेटेंट्स। तो जैसे आईबीएम है, आपने नाम सुना होगा आईबीएम, ये 2022 का डेटा है। आईबीएम के पास आज की डेट में 8540 पेटेंट्स हैं। ठीक है, सैमसंग जो है इसके पास 8517 पेटेंट्स हैं। एलजी कॉर्पोरेशन के पास 4388 है। कैनन के पास 3400 है। हुआवी टेक्नोलॉजीज के पास 2955 है। ये कंपनीज के पास है। और अगर इंडिविजुअल्स देखें तो ये है मिस्टर शुंपी यामाजाकी, इनके पास में 5807 पेटेंट है। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट किया सिल्वर ब्रुक है, 4747 पेटेंट्स हैं। डोनाल्ड वेडर के पास 1413 पेटेंट्स हैं। गुरतेज सिंह संधू, इनके पास 1382 है। पॉल लैप्सन के पास 1298 पेटेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक आइडिया आपको लग जाता है कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है पेटेंट्स को लेके, कितने लोग कितने पेटेंट्स कर रहे हैं, कितना इन्वेंशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए पेटेंट, मैं वैल्यू बता रही हूँ कि आईपीआर का वैल्यू क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो कोडक जो है, तो पेटेंट्स इनके पास पोर्टफोलियोज होते हैं, मतलब एक पेटेंट नहीं होता, जैसे बंच ऑफ पेटेंट्स विद देम, रिलेटेड पेटेंट्स होते हैं। तो जैसे कोडक के पास में 1100 पेटेंट्स हैं, इसका वैल्यू है 525 मिलियन यूएस डॉलर्स। अमेरिका ऑनलाइन के पास में एक पोर्टफोलियो है जिसमें 800 पेटेंट्स हैं, जिसका वैल्यू 1 बिलियन है। मोटोरोला है, उसके पास में 17,000 पेटेंट्स का एक पोर्टफोलियो है, जिसका वैल्यू जो है 12.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इसी तरह से ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क में एप्पल के पास, एप्पल का जो ट्रेडमार्क है, जो लोगो है उसका या एशिता आई जस्ट कम टू यू, उसका जो वैल्यू है वो है 355 बिलियन यूएस डॉलर्स। अमेजॉन का जो लोगो है उसका ट्रेडमार्क जो है उसका वैल्यू है 350.27 बिलियन यूएस डॉलर्स। गूगल का जो लोगो है उसका वैल्यू है 263 बिलियन यूएस डॉलर्स। आप अंदाजा लगाइए कि कितना वैल्यू होता है आईपीआर का। कॉपीराइट, म्यूजिक में अगर मैं बोलूं तो उस गाना जो है स्क्रीम माइकल जैक्सन का, उन्होंने बेचा नहीं है उसको, अभी सिर्फ लाइसेंसिंग कर रहे हैं। उसका जो कॉपीराइट है वो उसका वर्थ है 7 मिलियन, एक गाने का 7 मिलियन यूएस डॉलर्स। एक पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची का, साल्वाडोर मुंडी, उसका है वैल्यू 450.3 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि वैल्यू क्या है आईपीआर का। नेक्स्ट प्लीज। अब आप जब स्टार्टअप बनाएंगे अपना, तो उसमें आप अपने आईपीआर का, अपने पेटेंट का, अपने ट्रेडमार्क का, अपने कॉपीराइट का कैसे मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, और क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सीक्रेसी होता है, सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग सीक्रेसी रखना बहुत जरूरी है। जब आपका आइडिया अंडर डेवलपमेंट होता है तो उसको सीक्रेट रखना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन, अगर ये पब्लिश हो जाता है, अगर कहीं बाहर पता चल जाता है तो फिर वो प्रायर आर्ट में चला जाता है। लोगों को पहले कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता है ये, तो इसीलिए ये इट वोंट बी प्रोटेक्टेड, ये रिजेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए सीक्रेट रखना जरूरी है। आप अपना एक डायरी मेंटेन करिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए और अपने आइडिया उसमें लिखिए। वैल्यूएशन जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वैल्यू बताई है आईपीआर की, तो वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। तो वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है, कॉस्ट मेथड, मार्केट मेथड और इनकम मेथड। मतलब ये है कि आपको कितना पैसा लगा उसको बनाने में, वो एक उसका वैल्यू होता है। एक मार्केट में अगर आप उसको सेल करने जाते हैं तो उसका क्या वैल्यू है, और उसको सेल करके क्या इनकम जनरेट हो रहा है, वो मेथड। ये 3-4 मेथड्स इकट्ठा करके बना करके आप उसका वैल्यू एक कॉस्टिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी बेसिक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका जो आईपी है उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। जैसे आप पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट को आप रजिस्टर कराएंगे तो जरूर रजिस्टर कराएं।
और आपके स्टार्टअप में ऐसी पॉलिसीज होने चाहिए कि जब आईपीआर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ में, कुछ एग्रीमेंट्स आप रखें, जैसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स हैं, इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्लीज। अब हम जल्दी से पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पे प्लीज वेट कीजिए, रुकिए। एक क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले इशिता और ने बात करी थी कि इन्वेंशन और इनोवेशन में फर्क क्या है। तो कोई बता पाएगा इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या फर्क है? एनीबडी? हाँ कुणाल बताइए। Ma'am, something that has never existed before. Means if we come up with something that's totally new, with and solve that particular problem in a totally new way, was never thought before. So for that we can go for invention. And innovation is adding value existing solution. I have a solution like there's an engine already available, but it gives me a mileage of 20 kilometers per liter. Now I'm working on it so that I may extract 22 or 23 or 25 kilometers per liter. So that will be an innovation. Okay, thank you. Anybody else? Innovation और invention में क्या फर्क है? या तरुण? मैम एक्चुअली इनोवेशन इज काइंड ऑफ लाइक जनरलाइज टर्म, जिसमें जरूरी नहीं है फिजिकल कोई चीज आए या फिर नॉन फिजिकल हो, तो कोई भी हो सकता है, लाइक काइंड ऑफ आइडिया, काइंड ऑफ कोई सोच हो सकती है, या कोई पीस ऑफ आर्ट हो सकता है। पर इन्वेंशन इज काइंड ऑफ की एग्जिस्टिंग हो, एक उसकी मतलब प्रॉपर्टी हो रियल में, एक चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजाइन हो, एक डिफरेंस है दोनों में। ओके, और कोई? कुसुम? इशिता या कुसुम? हाँ बताइए। मैम इन्वेंशन में ये कि हमारे सामने कोई चीज प्रेजेंट है जो हम लोगों ने इन्वेंट कर ली, बट इनोवेशन आई थिंक कि अभी दैट्स एन आइडिया, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई डिजाइन हो सकता है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, इशिता? मैम आई थिंक innovation is a broader term and invention may come within it. अच्छा, my perspective. ओके, और कोई? यस आयुष? मैम इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, और इनोवेशन का मतलब होता है नव निर्माण, मतलब कुछ ऐड करके और उसको बना देना। Okay, good. Excuse me, ma'am. There is no voice from your side. आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप थोड़ा सा स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करिए अपना मोबाइल, या लॉग इन लॉग आउट कर लीजिए प्रदीप जी। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। बहुत बहुत सारे डेफिनेशन मिल सकते हैं, लेकिन सबसे फंडामेंटल ये है डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इन्वेंशन वो है जो नया है, जो पहले कभी था ही नहीं, देखा ही नहीं किसी ने, ठीक है, उसको इन्वेंशन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टीम इंजन हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल्स है, बल्ब हो गया, वो इन्वेंशन है। इनोवेशन वो है जो उस इन्वेंशन का डिफरेंट यूज। हेलो मैम। हाँ बताइए जी, इसमें कौन रजिस्टर कर सकता है? स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं क्या? ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो इनोवेशन है वो इन्वेंशन को किस तरह से डिफरेंट वे में यूज करें। एक एग्जांपल देने, ऐसे आप समझिए इस चीज को, मतलब जो जैसे आपने कुछ लोगों ने बताया कि आइडिया होता है, इनोवेशन इज एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन ए डिफरेंट वे। उसको जैसे फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब जो है ओरिजिनल जो है वो इन्वेंशन था, लेकिन अब क्या हुआ है, डिफरेंट तरह के बल्ब्स आ गए। जैसे सबसे कॉमन क्या है, एलईडी बल्ब, करेक्ट, वो एक इनोवेशन है। उस तरह से कुछ ऐसे बल्ब्स आए हैं जो कि थेरेपी करते हैं, थेरेपी करने के लिए कुछ बल्ब्स यूज होते हैं, आप सर्च करिए आपको मिलेगा। उसके बाद कोई टेम्परेचर चेंजिंग बल्ब होते हैं विच कैन हेल्प योर फिजिकल वेलबींग। इस तरह के बहुत सारे इनोवेशन सिर्फ एक बल्ब से ही आ गया है। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है
ये आप करके हमें मेल में भेजिएगा। असाइनमेंट आपका ये है कि कोई भी एक इन्वेंशन आप चुन लीजिए आपकी मर्जी से, ठीक है। चूज वन इन्वेंशन और उस इन्वेंशन को लेकर के कोई 5 इनोवेशन, ओके, यू हैव चोजन वन इन्वेंशन, उससे रिलेटेड 5 इनोवेशंस आप हमें लिख करके भेजिएगा। इज इट क्लियर? ओके आप क्लियर है? यस मैम, यस क्लियर। एक इन्वेंशन चुनिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड 5 इनोवेशंस, उसकी लिस्ट बनाइए और हमें भेजिए, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब पेटेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? तो इसमें हम क्यों जा रहे हैं पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? जैसे मैंने पहले ही बताया है कि स्टार्टअप्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बेसिस पे ही बनाया जाता है, ठीक है, और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना है। और कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे? पेटेंट्स हैं। ओके, सो व्हाट इज अ पेटेंट? अगेन दिस इज द सेम स्लाइड, रिपीटिशन है, मैं इसको अब थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। पेटेंट क्या है? एक राइट है, लीगल राइट है, जो एक इन्वेंटर को दिया जाता है फॉर हर इन्वेंशन, ठीक है। अब इन्वेंशन जो है उसको किसको इन्वेंशन मानते हैं? वो चीज जिसमें एक इन्वेंटिव स्टेप है, और इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है? वो नया होना चाहिए, पहले एग्जिस्ट ना करे, विच इज न्यू एंड नॉन ऑब्वियस। न्यू कैसे पता चलेगा? एक कॉन्सेप्ट होता है प्रायर आर्ट का। प्रायर आर्ट में जब पेटेंट ऑफिस में आप अपना एप्लीकेशन देंगे तो वो ढूंढेंगे कि आपने जो दिया है वो उसी तरह का कहीं पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था, अगर करता है तो फिर वो न्यू नहीं है ना, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। और अगर पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड। एक दूसरा पॉइंट होता है नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस का मतलब है कि जैसे आप एक कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेटेंट बना रहे, मान लीजिए एग्रीकल्चर से वो प्रोडक्ट बनाया रिलेटेड, तो जो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट होगा, एक्चुअल एक्सपर्ट, उसको ये जो आपका प्रोडक्ट है वो नॉन ऑब्वियस लगना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि अरे ये तो सचमुच नया है, हमने तो कभी भी कहीं नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट जो है स्किल्ड है इन द आर्ट। तो अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट, ही इज कंसल्टेड, और उसको पूछा जाता है कि आपका ये जो आपके पास प्रोडक्ट आया है ये क्या ऑब्वियस है या नॉन ऑब्वियस है? क्या आपको लगता है कि कोई भी बना सकता है या बना हुआ है पहले से ही? तो वो कहेगा कि नहीं, ये तो नॉन ऑब्वियस है, इट डिडंट ऑकर टू मी, मुझे नहीं समझ में आया था कि ऐसा भी बन सकता है। तो दिस इज व्हाट नॉन ऑब्वियसनेस मीन्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये 3 चीजें अगर आपके प्रोडक्ट में है तभी आपको वो राइट मिलेगा, वो पेटेंट ग्रांट होगा, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए होता है? कोई भी थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए होता है, मतलब ये एक्सक्लूसिव राइट होता है। कोई भी ऐसे ही नहीं उसके लेके आपके प्रोडक्ट को जाके बना देगा, ठीक है, वो वायलेट कर रहा होगा। अगर आपने कंसेंट दिया है लिखित में और किसी तरह से लाइसेंस दिया है तो ही वो कर सकता है। क्या कर सकता है? उसको मेक बना सकता है, या फिर उसका यूज कर सकता है, उसको बेच सकता है, या इंपोर्ट कर सकता है, उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, इस तरह की चीजें वो कर सकता है फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। टाइम पीरियड भी आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, कितना? 20 ईयर्स। इंडियन जो पेटेंट सिस्टम है इंडिया में 20 ईयर्स दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बाहर के कंट्रीज में अलग अलग है, वो दैट इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड हियर टुडे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? जब आप ये सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने बनाया क्या है। तो पब्लिक डिस्क्लोजर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसमें आप छुपा के नहीं रख सकते कि भाई मेरा पेटेंट है, आपको मैं यूज करने दे रहा हूँ, बट आप उसके बारे में जान नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पब्लिकली वो अवेलेबल हो जाता है वो, लेकिन राइट्स आपके पास रहता है 20 ईयर्स के लिए। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, पेटेंट जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि पेटेंटेबल नहीं होता है, पेटेंट नहीं किया जा सकता उनको। ये सेक्शन
3 और 4 है शायद पेटेंट एक्ट का, जिसमें ये बताया गया है कि क्या क्या आप नहीं पेटेंट कर सकते, क्या है ये फ्रिवलस और एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज के खिलाफ कुछ बता दिया कि ऐसा होता है तो वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद है पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ अगर कुछ आपने बता दिया कि इसको प्रोटेक्ट करिए तो वो नहीं हो सकता। कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि नेचुरली पता है, थियरी है, लॉ है, इस तरह की लॉज हैं, ये सब नहीं पेटेंट होते हैं। एक कोई सम सब्सटेंस दैट यू नो, उसका एक यूज होता है और उसका कोई नया यूज, अब यहाँ पे ये डिबेटेबल है, न्यू यूज ऑफ ए नोन सब्सटेंस, ये कहीं पे इनोवेशन के डोमेन में आ जाता है, ठीक है, तो इट इज नॉट प्रोटेक्टेड। कोई दो चीजों को लेके मिला दिया, जैसे हल्दी और दूध मिला दिया, उसको पेटेंट करने चले गए, तो वो नहीं, मेयर एडमिक्सचर है, आपने एडमिक्सचर कर दिया। अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ नोन डिवाइसेस, यू नो, जैसे कुछ किसी स्कूटर और किसी और चीज को मिला दिया, उसको पेटेंट करने चले गए, नो। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं वो पेटेंट नहीं किए जाते। प्लांट्स एंड एनिमल्स उठा के ले गए, आप पेटेंट कर दें, नो। वैरायटी जरूर प्रोटेक्ट होता है, लेकिन ऐसे ही अगर जंगल में कहीं कोई प्लांट मिल गया, एनिमल मिल गया, क्योंकि नई चीज है, नया चीज देखने को मिल गया और हम पेटेंट करेंगे इसका। मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, आपने कोई बिजनेस मेथड जो है इनोवेटिव किया, लेकिन वो पेटेंटेबल नहीं होगा। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, ये पेटेंट नहीं होगा, लेकिन ये कॉपीराइट जरूर होगा। कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी बना लिया या कोई स्कीम बना लिया, कोई रूल बना लिया, दैट वोंट बी पेटेंटेड। Presentation can be subject to copyright depending upon the originality of your presentation and traditional knowledge। इसका तो ट्रेडिशनल नॉलेज का तो आप लोगों को पता होगा, हल्दी और बासमती राइस वगैरह के लिए जो उन्होंने पेटेंट कर दिया था एंड इंडिया ने फाइट किया था, तो एवरीबडी नोज। सो ये सब दे आर नॉट पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट प्लीज, वी डोंट हैव मच टाइम, आई वांट टू रश थ्रू। आपको पता है टर्म ऑफ पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स है from the date of filing your application। Next please। अगर किसी ने आपका पेटेंट वायलेट किया, इन्फ्रिंज किया, तो ये लीगली इंजंक्शन होता है, उसको बताया जाएगा, ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर जाएगा, तो बताया जाएगा कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, उसको इवन डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है उसको। उसके बाद अवॉर्डिंग डैमेजेस, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिलेगी। एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, मीनिंग कोई प्रॉफिट होता है उस बंदे को जिसने आपसे इन्फ्रिंज करके आपके सामान को सेल किया, उसको जो प्रॉफिट हुआ वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ टर्म्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोट कर लें, दीज आर टेक्निकल टर्म्स विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक होता है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है। कौन होता है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसने एक्चुअली में शुरू में फर्स्ट इन्वेंट किया है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार ग्रुप में, टीम्स में काम करते हैं ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु इज द फर्स्ट टू कन्वर्ट आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स इनटू ए वर्किंग इन्वेंशन, अपने आइडिया को वर्किंग इन्वेंशन में, वर्किंग स्टेट में लेके आए हैं जो वो बंदा या बंदी विल बी द ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इज फर्स्ट टू अप्लाई सिस्टम। ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहले आएगा उसको ही उसका ही माना जाएगा रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टू अप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। सो इसमें ये होता है कि मान लीजिए आप ट्रू इन्वेंटर हैं, लेकिन आपसे पहले किसी ने जाकर के फाइल कर दिया, उसका डेट जो है ना, उसके बाद आप गए, तो जो उसका डेट है वो पहले माना जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको जल्दी ही पेटेंट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। प्रायर आर्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रायर आर्ट जो, मतलब प्रायर आर्ट जो पहले से ही हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, डेटाबेस में बहुत जगहों पे नॉलेज अवेलेबल है, और उस बॉडी ऑफ नॉलेज में अगर आपका पेटेंट या आपका इन्वेंशन जो है उसके बारे में पता है तो इट वोंट बी पेटेंटेड। अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता प्रायर आर्ट में आपका इन्वेंशन, देन इट विल बी पेटेंटेड। नेक्स्ट, पेटेंट स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, जब आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा।
आप लिखेंगे या एडवोकेट लिखेगा आपका, ये सब होता है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होता है, एक कंप्लीट। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वो होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं, है वो इन्वेंटिव, अब आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सारा काम नहीं हुआ है, डिटेल में काम नहीं हुआ है, कुछ हद तक हो गया है, तो आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 6 महीने का, कि उसके बाद आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सारा डिटेल आपको देना पड़ता है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, क्लेम्स होता है, डायग्राम्स होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब कौन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए? एक तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कर सकता है, ठीक है। अगर वो है, उसके जगह पे मान लो वो फाइल किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो उसका एक असाइनी होगा, वो किसी को असाइन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ या फैमिली मेंबर हो, कोई भी हुआ, कहेगा कि भाई आप या जो आप उसका फैमिली मेंबर होगा या फिर उसका टीममेट होगा। यूजुअली टीममेट्स होते हैं या जो आपके को वर्कर्स होते हैं, उनको असाइनी बनाया जाता है, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो उसका एडवोकेट होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, या वो कर सकता है। ठीक है, रजिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट प्लीज। पेटेंट ऑफिसेस इंडिया में 4 जगह पे है, तो आपका जो जहां आप हैं उसके जुरिस्डिक्शन में जो जो ऑफिसेस आते हैं, वो ऑफिसेस का जुरिस्डिक्शन है जहां जहां आपके एरिया में, वहां पे आप उस पेटेंट ऑफिस पे जा करके फाइल कर सकते हैं। तो एक न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में और कोलकाता में। मोड्स जो है, नेक्स्ट प्लीज। तो आप 2 तरह से फाइल कर सकते हैं, एक ऑनलाइन जाकर के कर सकते हैं और दूसरा ऑफलाइन जाकर के। दूर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, और नहीं तो ऑफलाइन भी किया जा सकता है, फॉर्म्स लेके फिल करके यू कैन फाइल। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन जो है आपका पेटेंट ऑफिस से मिल जाएगा, और फॉर्म के उसमें होता है, और एक ही एप्लीकेशन दिया जाता है एक इन्वेंशन के लिए। आपके पास अगर 2 इन्वेंशन है तो 2 अलग अलग फॉर्म्स होंगे, एक ही एप्लीकेशन में 2 इन्वेंशन नहीं जाएगा। 1 एप्लीकेशन फॉर 1 इन्वेंशन, और उसके साथ में एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जाता है। हालांकि प्रोविजनल भी आप फाइल कर सकते हैं जब आपके पास अगर पूरा काम नहीं हुआ तो। उसके बाद एक कवर लेटर होता है उसका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसमें एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, एक कवरिंग लेटर होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डालेंगे उसमें, एक मतलब उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म 1 में एप्लीकेशन होता है कि भाई हमें पेटेंट ग्रांट कीजिए। फॉर्म 2 जो होता है वो कंप्लीट या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वाला होता है, उसमें सारे डिटेल्स भरने होते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग होता है कि भाई हम लोग जो है वी आर द वंस हु आर द रियल इन्वेंटर्स। पावर ऑफ अटॉर्नी होता है आपका, लीगल जो एडवोकेट होता है या पेटेंट एजेंट होता है उसका होता है ये फॉर्म, पावर ऑफ अटॉर्नी। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप फॉर्म 5 होता है, जिसमें कहते हैं वी आर द ट्रू इन्वेंटर। एक होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आपने जब पेटेंट एप्लीकेशन दिया उसका एग्जामिनेशन होगा, तो वो एग्जामिनेशन के लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म 18, और उसके बाद फीस होता है आपका। ये आपके एप्लीकेशन के साथ में ये चीजें जानी होती है। अच्छा, नेक्स्ट प्लीज। अब जब आपने ये एप्लीकेशन दे दिया तो ये फीस का लिस्ट है, और ये ipindia.nic.in वेबसाइट है, उसमें जाकर के आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन से स्टेप के लिए क्या क्या फीस चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब आपने जब एप्लीकेशन दे दिया तो उसके बाद जो है वो पेटेंट ऑफिस जो है ना उसको एग्जामिन करता है। किस चीज के लिए एग्जामिन करता है, कैन एनीबडी से? आपने पेटेंट एप्लीकेशन डाला तो उसमें क्या एग्जामिन होगा, लोग क्या एग्जामिन करेंगे? एनीबडी? मैम पब्लिक डोमेन में तो नहीं है और एक्यूरेट है, ग्रांटेबल है। एनीबडी एल्स? पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, पहले से बनाया जा रहा है उसको, किसी और के पास तो नहीं है ये पेटेंट। करेक्ट, बिल्कुल सही, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। आई एम हैप्पी। यही देखते हैं, प्रायर आर्ट सर्च करते हैं और कि पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा।
ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, जब आपका देख लिया कि भाई ठीक है, प्रायर आर्ट में कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, ये नया है, तो एक और स्टेप करते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने जर्नल में। पेटेंट का जर्नल होता है पेटेंट ऑफिस का, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे पेटेंट ऑफिस जर्नल, उसमें ये पब्लिश करते हैं। कब करते हैं? जब आपने फाइल किया उसके 18 महीने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 महीने में ही इसको पब्लिश कराना है, एक्सपीडिशन होता है जल्दी कराने के लिए, तो एक फॉर्म भर के फीस देना होता है कि भाई हमारा जल्दी से पब्लिश करा दो, ठीक है। तो 1 महीने में एप्लीकेशन पब्लिश हो जाता है। इस तरह से पब्लिश होता है। इसमें डिटेल्स दिया होता है, एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट नीचे आप देख सकते हैं, किसने पेटेंट किया, क्या किया, प्रायोरिटी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट होता है। और इसका रीजन क्या है? मान लीजिए किसी ने कुछ इन्वेंशन कर रखा है, उसने वो लेट हो गया फाइल करने में, जब वो आएगा देखेगा तो वो अपोज कर सकता है इस चीज को, क्योंकि हमने भी तो कर रखा है, इनसे पहले कर रखा है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो उस तरह से आर्बिट्रेशन होता है, केस बनता है। जस्ट सिट एंड डिस्कस एंड देन दे डिसाइड कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इस लेवल पे भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो आजकल जो है ये आईपी जो डिपार्टमेंट हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये ऑटोमेट कर रखा है, जिसमें आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने फाइल किया, फिर जब वो पब्लिश हुआ, वो ट्रैकिंग आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी। और लास्ट नीचे वाले उसमें देखिएगा, ग्रांटेड एप्लीकेशन जब होता है तो उसमें आपका सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, पहले आपने फाइल किया, उसके बाद रिक्वेस्ट फाइल किया पब्लिशिंग के लिए, पब्लिश हो गया, वो भी देख सकते हैं। फिर अंडर एग्जामिनेशन होता है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद डिस्पोज्ड मतलब डिस्पोज मतलब कि योर प्रोसेस इज ओवर, नाउ यू विल बी ग्रांटेड द एप्लीकेशन, ठीक है। सो उसके बाद जब अब सारा प्रोसेस क्लियर हो गया, उसके बाद क्या होता है, पेटेंट को ग्रांट किया जाता है, सील कर दिया, सील के साथ में मिलता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। दिस इज द प्रोसेस। द फाइनल स्लाइड प्लीज। Ma'am, can we get this PPT, ma'am? Yeah. So Kunal, can you recognize this? Thank you so much, ma'am. So students, ये देखो, ये कुणाल का पेटेंट एप्लीकेशन है। Can you see it? तो कुणाल अम्बट जो है, हाँ, ये इनका पेटेंट है जो आपके बीच में अभी बैठे हैं। इनको रिसेंटली पेटेंट मिला है, ये जनवरी में। तो ये पेटेंट जो है आपका जो पेटेंट सर्टिफिकेट है वो ऐसा दिखता है। तो आपने इतनी मेहनत कर ली, इतने सालों की मेहनत होती है, इतना कुछ कर लिया, उसके बाद आपके हाथ में ये सर्टिफिकेट आता है। अब आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, एंड यू हैव टू यूज दिस। या आप उसको स्टार्टअप में अपना प्रोडक्ट को स्टार्टअप बनाइए, या उसको लाइसेंस करिए, या टेक्नोलॉजी, वो इसको लाइसेंसिंग ही बोलते हैं, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। यू कैन, यू नो, देयर आर सो मेनी वेज इन विच, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस पेटेंट को आप, इस आईपी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आई जस्ट लिस्टेड। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस कुणाल। और यस स्टूडेंट्स, अब बताइए क्या समझा, क्या Ma'am, it was filed in 2000. Ma'am, it was filed in Kunal sir's patent was filed in 2014, and thank you, he Dr. got this in. Momita, for such a nice session. अब किसी की कुछ queries हो, कुछ questions हो तो please. Yeah, Sujata. Ashita was asking a question. Yeah. Yes, ma'am. I was saying that Kunal sir's patent was filed in 2014, and it took this much years to got that approved or got this certificate. Yes. Kunal, would you like to answer? Yes, ma'am. Please. थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बड़ा वो आ रहा है, धीमी आ रही है आवाज। धीमी आ रही है मैम? हाँ। हेलो। हाँ, बताइए बताइए। Clear. Actually, what was the problem? Initially, government, whenever I used to call government offices, तो मुझे वहाँ से ये जवाब मिलता था कि we don't have sufficient manpower and we are working on the application. तो वो एप्लीकेशन जो है वो लटकती चली जाती है जब तक वहाँ पर मैनपावर ना हो कंप्लीट। अब होता क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन फाइल है उस एप्लीकेशन को
कई स्टेज से वो एप्लीकेशन क्रॉस होती है, कई जगह पर वेरीफाई होती है। उसके बाद में एक प्रोसेस आता है जहां पर आप FER करते हैं। FER यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो उसको करने के लिए आपको एग्जामिनेशन फी भरनी पड़ती है, दैट इज अराउंड 4400 रुपीज। तो पहले आप फी भरते हैं, फिर एग्जामिनेशन के लिए जब मान लीजिए आपका पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं। हमने कहा हाँ हम करवाना चाहते हैं, 4400 रुपीज। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम हमारा पेटेंट एग्जामिनेशन हो जाएगा तो FER आएगी, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में वो हाईलाइट करके कि भाई हमें ये समस्याएं हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ में, लग रहा है कि यहाँ पर और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि आपने इसको पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में क्लैरिफाई नहीं किया है, तो आपको फिर उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, हियरिंग अटेंड करनी पड़ती है, हियरिंग अटेंड करके उसे क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो खैर अब ये केस नहीं रह गया है, जो पुराने पेंडिंग वर्क क्लियर किए जा रहे हैं, लेकिन आप नया अप्लाई करेंगे तो यू वोंट टेक दिस मच ईयर। लेकिन देखिए आप मेरी केस में कि 20 ईयर्स के लिए मुझे ग्रांट किया, 9 ईयर्स वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, नाउ आई हैव ओनली 11 ईयर्स इन माय हैंड। तो ठीक है इसके बट अब जो नया एप्लीकेशन होगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस और क्वेरीज और एनीथिंग जो आपको पूछना है? ऑब्जर्वेशन है, कोई कुछ कहना चाहता है? क्या सीखा? मैम मान लो कोई प्रोडक्ट है और उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट का अलग पेटेंट होगा या पूरे मतलब एक ही पेटेंट होगा? हो सकता है अलग, डिपेंड्स, वो फंक्शनल होना चाहिए। वो जो आपका जो डेफिनेशन है ना उसका इन्वेंशन पेटेंट का जो डेफिनेशन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेटेंट, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर वो इन्वेंटिव है और केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसके यूजफुल है, इट हैज टू बी यूजफुल। तो हाँ, अगर पार्ट यूजफुल है तो डेफिनेटली वो पेटेंटेबल है। ऐसे बहुत कंपनीज हैं जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेसिफिकली फॉर बिगर प्रोडक्ट, बिगर मशीनरी, वो भी पेटेंटेड है, ऐसा है, हो सकता है। मैम किसी भी इन्वेंशन में पेटेंट लेने के बाद इसको मार्केट में कैसे लाना होगा, मतलब इसे मॉनिटरी बेसिस पे कैसे मतलब हमें यूज करना है इस पेटेंट को, मतलब? हाँ, तो इसके बारे में सोच आपको पहले होना है, पेटेंट से पहले। उसके एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपको मार्केटिंग वगैरह, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इट शुड बी एबल टू सेल इट इन द मार्केट। तो जब आप पेटेंट को डेवलप कर रहे होंगे, मतलब आपका इन्वेंशन को डेवलप कर रहे होंगे, तो उसी समय आपको देखना पड़ेगा कि ये मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो ये पहले आता है, मतलब पेटेंट लेने से पहले ही आएगा ये। मैम पेटेंट जब इशू हो गया हमें सर्टिफिकेट, तो हम उस पेटेंट को मतलब मल्टीपल कंपनीज को दे सकते हैं ना अपने आइडिया को? बिल्कुल लाइसेंस कर सकते हैं। ओके मैम। मैम डिजाइन पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट इनहेरेंट होता है प्रोडक्ट का, जो क्वालिटी होता है, कोई नई चीज है, पूरा प्रोडक्ट है। और डिजाइन ऐसा है कि डिजाइन नया है, ऊपर से नया है, प्लास्टिक का कोई चीज है लेकिन वो नया देखने में है, या कंक्रीट का है, ऐसे समझ लो। दिखने में लुक, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो डिजाइन में आएगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसका इनहेरेंट क्वालिटी वो कैसा होगा। तो अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसको वो नया है और उसको सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो आपको दो मिल सकते हैं पेटेंट, प्रोडक्ट के लिए मिल सकता है, डिजाइन के लिए मिल सकता है। ओके मैम, फिर अप्लाई मतलब अलग अलग करना होगा? अलग करना पड़ेगा, एक इन्वेंशन के लिए, एक डिजाइन के लिए एक एप्लीकेशन, वन। मैम जैसे मार्केट्स में इन्वेंटिव टॉयज होते हैं, मतलब टॉयज, तो मतलब उनके लिए भी ऐसा कुछ फाइल किया जाता है? हाँ बिल्कुल होता है, प्लीज नहीं आप पहले। ओके वेलकम, बस हाँ, यस प्लीज। हाँ, मार्केट में अगर इन्वेंटिव कोई चीज आई है तो डेफिनेटली पेटेंटेड ही होते हैं। और कोई? आई थिंक और कोई क्वेरी है नहीं। कुणाल, यू हैव एनीथिंग टू से? Kunal, you have anything Yes, to ma'am. say?
Yeah, please. मैम अभी अनिता जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पेटने के बाद में क्या करेंगे। मैं एक छोटा सा यहाँ पर मैम, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस मैम, जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हम मान लीजिए हमने कुछ बनाया, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमने वो क्यों बनाया। क्या कोई रियल वर्ल्ड की हम प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ इन्वेंशन किया है, तो इन्वेंशन देखिए, कहते हो कि रिक्वायरमेंट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अगर आपको आवश्यकता हुई थी तभी आपने आविष्कार किया है, तो आपको जो आवश्यकता हुई का जो रिक्वायरमेंट था उसके लिए आपने इन्वेंशन किया है। तो इसका मतलब है जितने लोगों को वो रिक्वायरमेंट हो रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट को वो आपका इन्वेंशन जो है वो एड्रेस करेगा। इसका मतलब है कि आपके पास में ऑलरेडी मार्केट है, उस मार्केट की प्रॉब्लम को आपने एड्रेस किया है, तो आपका इन्वेंशन उसको सॉल्व करने जा रहा है। अब आपके पास में यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो लेकर आपको आ गया एंड यू विल हैव योर ओन स्टार्टअप। दूसरा कि जो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है आप उनको बेच दो, या मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ताकि हमें उससे जो भी हमारा इंटरेस्ट हो हमें मिलता है। ये चीजें होती है। और एक चीज और है कि शायद भी मैंने ये सुना था कहीं, वो कोई पूछ रहे थे कि सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर के टर्म्स में सॉफ्टवेयर इन जनरल इंडिया में पेटेंटेबल नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, शायद कोई पूछ रहे थे यहाँ। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई इवेंट प्रोडक्ट बनाया है, एकदम कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, मान लीजिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया कि जिसकी मदद से मैं अपने ब्रेन पे मान लीजिए एक क्लिप लगा देता हूँ और उस क्लिप से मैं सोचता रहूंगा और आपको एसएमएस व्हाट्सएप ईमेल्स जाते रहेंगे मेरे सोचने से सिर्फ। नो डाउट अब तक नहीं करता और मैं पहला ऐसा इंसान हूंगा जिसने ये बनाया। तो उसमें जो आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है दैट यू कैन अप्लाई, दैट कैन बी पेटेंटेड, एल्गोरिथम पेटेंट पाया जा सकता है अगर वो इन्वेंटिव मशीन है तो, और अगर नहीं है तो आप इन जनरल सॉफ्टवेयर को पेटेंट नहीं करवा सकते। सर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सर कॉपीराइटेड ना, आई थिंक। हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का आप कॉपीराइट ले सकते हैं एंड विद योर कॉपीराइट यू कैन इजीली प्रोटेक्ट, देयर इज नो इशू। हेलो मैम, आई हैव वन लेकिन मोर क्वेश्चन। मैम जो ट्रेड सीक्रेट्स एक मतलब डोमेन थी, उसमें क्या मतलब इंक्लूड होगा, क्योंकि एक हमारा एक स्मेल और एक अलग एक ऐसा डोमेन था ना हमारा जो आपका पीपीटी था, तो उसमें ट्रेड सीक्रेट्स में वो उसमें क्या इंक्लूड होगा मतलब। ट्रेड सीक्रेट्स एक ग्रे एरिया है इंडिया में। बाहर के कंट्रीज में क्या होता है कि प्रोटेक्टेड रहता है, तो अभी लॉ अभी भी मतलब इट इज इन द प्रोसेस, आई थिंक पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन कंपनीज के अपने ही वो होते हैं मैकेनिज्म नॉन डिस्क्लोजर और ये सब चीज़ों के तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ट्रेड सीक्रेट्स को। तो उसको हम कभी आगे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। आप हेलो, एज ऑफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट under any IPR law in India, लेकिन discussions are going on to bring it under the ambit, जहाँ तक मुझे पता है। Yeah. मैम इंटरनेशनल लॉज और इंडियन लॉज मतलब कैसे कोलाइड करेंगे, लाइक कोई भी हमने पेटेंट ग्रांट कर लिया। There are certain mechanisms, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है और इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक पेटेंट को डिफरेंट कंट्रीज में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में ये था नहीं, वो आगे हम बता सकते हैं आपको डिटेल में। There are mechanisms, yes. मुझे लग रहा है कि जो क्वेरीज ये जो क्वेरीज आ रही हैं, you will have to be connected with us. We will be taking such topics in future sessions. जो हमारे आगे सेशंस होंगे उनमें हम यही सब टॉपिक्स लेंगे। तो मुझे लगता है बाय द बाय और क्लैरिटी आपको आती जाएगी। आज के टॉपिक में हमारा ये एम था कि ये फोकस था कि आपको बेसिक्स से स्टार्ट करें कि बेसिक्स क्या है, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जैसे एक सेशन आगे हम रखेंगे इंटरनेशनल पेटेंट लॉज क्या कहते हैं और इंडियन पेटेंट लॉज कैसे उससे डिराइव हुए हैं, उससे कैसे कनेक्ट करते हैं। सो इट विल ऐड टू मोर क्लैरिटी। थैंक यू।
Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. हेलो Yes, Ayush. Yeah. Is it मैम, अगर Pradeep? कोई, हाँ मैम, हमको एक डाउट था। हम पूछना चाह रहे थे कि अगर कोई कहानी, कविता या फिजिक्स की बुक लिखना चाहे या मैथ्स की बुक लिखना चाहे तो क्या उसको कॉपीराइट करा सकते हैं क्या? हाँ, आप कॉपीराइट करा सकते हैं। द थिंग इज दैट इट हैज टू बी ओरिजिनल। आपका अपना क्रिएशन होना चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल। बिल्कुल करा सकते मैम इसका मतलब है कि इसे प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए ना? हाँ, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। इट हैज टू बी द क्रिएशन ऑफ योर ओन माइंड। हेलो हेलो मैम, हमको एक डाउट था कि ये जो पेटेंट और कॉपीराइट कराने का जो तरीका है वो क्या अलग अलग है? हाँ, तरीका अलग है बिल्कुल। पेटेंट का अलग एप्लीकेशन होता है, पूरा प्रोसेस अभी जैसे आपको बताया थोड़ी देर पहले वो होता है पेटेंट का, और कॉपीराइट का अलग होता है। कॉपीराइट एक्चुअली जिस दिन आपने क्रिएट किया है वहीं उसी दिन एग्जिस्टेंस में आ जाता है, आपका राइट बनता है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। Excuse me, ma'am. हाँ Hello, बताइए। ma'am. हाँ हेलो, बताइए। जी बताइए। हेलो हेलो मैम, हमको एक डाउट था कि कॉपीराइट अगर कराना है कोई कहानी का किताब या ऐसा कविता का कुछ कॉपीराइट कराना है तो कौन से वेबसाइट यहाँ पर जाके मिलेंगे, विजिट करेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया का वेबसाइट है, मैं अभी चैट बॉक्स में वो डाल देती हूँ, आप उसको देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू मैम। लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है। मैं बाकियों को कहूंगी कि इसको आप एक्सप्लोर करिए। यू विल गेट एडिशनल रिसोर्सेज आल्सो फ्रॉम दिस वेबसाइट। Dr. Sujata, I think there is a question for you. Ma'am, can we have some common group? I have seen that. Yeah, we will try to create a common group. Let the sessions. This was first session. Let more sessions come in. और sessions आते हैं तो हम जो भी हमारे joinees हैं हम उनका एक common group बनाएंगे definitely. एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि आप सभी अपना ईमेल आईडीज इसमें डाल दीजिए जो ने आज ज्वाइन किया है। चैट बॉक्स में सारे सभी दे दीजिए। So this will help us in keeping a record of the people who are joining us in our sessions, and we can have a common group and future activities में भी उनको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिए चैट बॉक्स में सभी। So Dr. Sharma, shall we wind up the session for today? हाँ, बाइंड अप तो कर सकते हैं और अच्छा रहा, काफी इंटरेक्टिव भी है और इंफॉर्मेटिव तो था ही था। और जिस तरीके का रिस्पांस स्टूडेंट्स का आ रहा है वो अच्छा है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है आपको, क्योंकि हम ये जान पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत आइडियाज हैं, इनोवेशंस भी हैं, और जो क्वेरीज आती हैं तो कई बार पूछते हैं कि हम क्या करें। तो हमने सोचा क्या करें का जवाब यही है कि हम आपको थोड़ा सा अवेयर करें, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सेशन जो आयोजित किया है आज का, और ये पहला है। बेसिक्स बताना था आपको, मतलब एक तरीके से कि आईपीआर क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, किसका लिया जा सकता है, पेटेंट किस लिए फाइल किया जा सकता है। बाकी आगे की जो कड़ी होंगी उनमें और इससे डिटेल में हम बात करेंगे और थोड़ा और स्पेसिफिक होंगे। मैं देख रहा हूँ जैसे अभी यहाँ
डॉक्टर मौमिता ने कुणाल का जो पेटेंट सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया, तो सर्टेनली ही हैज अंडरगोन थ्रू द एंटायर प्रोसेस। उनको पता है कि क्या पहले किया, फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का एक्सपीरियंस शेयरिंग भी बहुत जरूरी है। और अभी तो कम स्टूडेंट्स है, पर पहले मैं देख रहा था कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे शॉर्ट लिस्टेड हैं इन डिफरेंट स्कीम्स इवेंट्स, चाहे वो इनोवेशन अवार्ड हो या बिजनेस प्लान हो या और किसी भी इवेंट में, तो इसका मतलब है कि उनके पास में कुछ है तो सही, इनोवेटिव है। और अब हम चाहते हैं कि आप जो है उस जो भी आपके पास में आइडिया या इनोवेशन है उसको पेटेंट के लिए, अपने आईपीआर प्रोटेक्शन के लिए जरूर आगे बढ़िए। दिस इज आवर बेसिकली 1 पॉइंट एजेंडा। उसके लिए हम आपको अवेयर करें, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें, आपको रास्ता बताएं, किसी दूसरे के साथ में कनेक्ट कराएं, हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो हम देखें। लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स शुड बी फाइल्ड बाय इग्नो स्टूडेंट्स। दैट इज आवर 1 पॉइंट एजेंडा बेसिकली। और उसका वो पॉसिबल तभी है जब आप पहले अवेयर होंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं पेटेंट फाइल कर सकता हूँ। मैं कई जगह देख रहा था कि हमारे स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड में उनके इनोवेशंस हैं, इनोवेशन किए हुए हैं, लेकिन उनका जो डिजाइन है वो अपने आप में पहले फर्स्ट स्टेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू हैव वेरी यूनिक इनोवेटिव डिजाइन, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर पेटेंट फाइलिंग फॉर दैट डिजाइन। और अलग अलग स्टेज पे, जैसे मैं किसी को सुन रहा था कि क्या किसी भी एक इनोवेशन में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, तो आपको लग रहा है कि वो जो भी पार्ट या कंपोनेंट लग रहा है कि वो दैट इज having a unique, it's a individual identity or innovative है, तो you should certainly go for IPR protection, certainly go for that। कुछ आवाज आ रही है। So let us now conclude this session, Dr. Sharma. Yes, yes. I thank the expert speaker, Dr. Moumita Das, for such an informative and interesting session that we had today. Thank you, Dr. Das, and thank you all for joining in. And we hope you will stay connected in our future sessions also. And I hope all of you have provided your email IDs. Some of you are still remaining. Tarun, have you provided yours? And Vansh Rajput, we don't have your email ID. Yeah, and Vansh Rajput and Pintu Prasad Gupta. Please provide your email ID. Yeah. Thank you so much. So thanks for joining in. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, all the best.